Hello everyone, this is Kitika Arora here, and in this lecture on special demand of one of my viewer, today finally I am starting with the accountancy of plus one class. So this lecture is basically for those students who have just completed their 10th class and just because of the spread of this coronavirus pandemic they are unable to get the lectures from their teachers, or even this is not only for them, even this is for every person, every student who have just opted for the accountancy course and they want to understand each and every concept of accountancy in the simplest of the way. So this lecture helps them to understand the accountancy part, accountancy concepts in details. So for the lecture 1 here I am just starting with the basic terminologies and the golden rules of accounts. Now what is the meaning of basic terminologies? For understanding any of a new language, because here accountancy is also a new technical language for you all. So for understanding that particular language you should understand the meaning of different terms which you will be using in that particular language. In the same way here accountancy also have so many terminologies which everyone should understand before going through the other aspects of accountancy. So meanwhile, for that particular part in this lecture I am firstly giving you the meaning of different terms which we will be using in the other lectures of accountancy, and afterwards I will be giving you 3 golden rules of accountancy which you will be using for every part of accountancy. Even I am not just giving you the golden rules, but here in this lecture I am also giving you the tactics, the tricks to use these rules, so that when I am promising you that I am here and I am giving you the simplest way to understand the concept of management and commerce, so for that part you should know some of the tricks as well. So here in this first lecture I am giving you that tricks as well. Now, for all the beginners, you should understand the meaning of some of the terms which you will be using in the further lectures of accountancy. I have tried myself best to give you the meaning of much of the terms which you will be using. Still, if any of a term will left, I will be giving you the meaning of that terms in different lectures as well. Now finally jumping to the main topic or the topic of today's lectures, that is terminologies of accountancy. Our first terminology of accountancy is asset. Now what is the meaning of asset? For all the beginners, you have already heard about the term assets, or few of you haven't heard about the term assets, but the meaning of asset is very simple and it states that anything which will yield you the benefit in future period of time. It means कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, इवन फ्यूचर में नहीं अभी भी बेनिफिट दे रही है, उसे हम अपना एसेट कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा, इवन एनीथिंग अदर देन दैट, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन जो आप अभी यूज़ कर रहे हो जिसे सेल करने के बाद भी आपको पैसे मिलेंगे, आपका कंप्यूटर, आपकी बाइक, आपकी कार, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी बेनिफिट दे रही है और फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी. फ्यूचर में बेनिफिट कैसे देगी? फ्यूचर में जब उसे अच्छे से यूज़ करने के बाद आप उसे सेल करेंगे और सेल करने के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे भी क्या देंगे? आपको बेनिफिट देंगे. With this I am just expecting that you have understood the meaning of asset. That is very simple. कोई भी चीज़ जो हमें अभी भी बेनिफिट दे रही है एंड फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा एसेट होगा. सो अकाउंट्स में हम इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में हम ऐसी चीज़ों को अपना एसेट बोलते हैं और अपनी कंपनी का एसेट बोलते हैं. नाउ
if you have understood the meaning of asset, you should know the simplest classification of asset. So I am here and I have just given you the very simple classification of asset, that asset has been classified into two parts. First one is current asset and the second one is fixed asset. Now what is the meaning of these two terms, current assets and fixed assets? See, there are so many other classifications of assets as well, and I will be definitely giving you that classifications as well. But for the today's lecture, because this is the beginners lectures and अभी आप लोग बहुत छोटे हो, अभी आप beginners हो, इसलिए अभी आपको सिर्फ दो classifications ही पता होनी चाहिए. वो classification कौन सी है? First is current asset and the second one is fixed asset. Now what is the meaning of current asset? Those assets which will readily convertible into cash are called fixed current assets. Now what is the meaning of this thing? This simply states that ऐसी चीज़ें, ऐसे assets जिनको आप अभी मार्केट में जाके सेल करोगे एंड अभी के अभी आपको पैसे मिल जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम करंट एसेट्स बोलेंगे. इसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल है इन्वेंट्री और द स्टॉक, जिसे जब आप सेल करोगे तभी के तभी आपको पैसे मिल जाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल इज अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट. अभी सिर्फ इसका नेम याद रखो, इसका मीनिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे. थर्ड इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? जो एक साल से कम के पीरियड में आप एनकैश करवा सकते हो. मींस हमारे पास सिक्योरिटी है, 2 महीने 3 महीने का पीरियड है, जिसका 3 महीने के बाद बैंक में गए, सिक्योरिटी दी, वो एक एक्नॉलेजमेंट दी और हमें पैसे मिल रहे हैं. ये भी किसके एग्जाम्पल है? करंट एसेट के एग्जाम्पल है. Now next is fixed assets. Now what is the meaning of fixed assets? Those assets which take considerable amount of time to convert into cash are called fixed assets. अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ें जिन्हें सेल करने से पहले आपको सोचना पड़ता है, जिन्हें सेल करने से पहले आपको डिफरेंट ऑप्शंस को ध्यान में रखना पड़ता है. क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि ऐसे एसेट्स काफ़ी महंगे होते हैं एंड साथ में इनके परचेज प्रोसीजर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं. ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे. इसके एग्जांपल क्या होगी? लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिन्हें बेचने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है एंड जिनका कन्वर्ट होना कैश में काफ़ी टाइम लेता है. इसे हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड एसेट्स. Now the fourth terminology of accountancy is liability. Now what is the meaning of liability? The amount of money which the company owes to outsiders. Now what is the meaning of this line? इसका मतलब है जो पैसा कंपनी को बाहर वाले लोगों को वापस देना होता है, वो क्या होती हैं? हमारी लाइबिलिटी होती है. एंड इन द सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज यू शुड कॉल देम उधारी. जो तुम्हारी उधारी होती है, कर्ज होता है, जो तुम्हें कुछ समय के बाद अपने क्रेडिटर्स को वापस देना होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज़ कहेंगे. इसकी एग्जांपल क्या है? अकाउंट्स पेबल, डेट इज़ अ क्रेडिटर. अभी अगेन सिर्फ इसका नेम याद रखो, मीनिंग अभी आगे बताऊंगी. नेक्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. इसका क्या मतलब है? ऐसी वेजेस, ऐसी सैलरीज जो आपने अभी तक पे नहीं की है बट अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको पे करनी है. तो ये तीनों किस चीज़ की एग्जांपल है? ये हमारी लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल है. सो विद दिस आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ assets, current assets, fixed assets and liabilities. Now just move to the next part, that is the classification of liabilities as well. Here also I am just giving you the simplest classification of liabilities, and in that sense we will be classifying liabilities into two parts. First one is current liability and the second one is non-current liability. In the same way like you have understood current assets and fixed assets, these are the example of liabilities, that is current liabilities and the non-current liabilities. Now the first is current liabilities.
the liabilities which are expected to be paid within a period of 12 months or an year। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे कर्ज, ऐसे उधारी जो आपको अगले 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, करेंट लाइबिलिटीज़। इसकी एग्जांपल फिर से सेम है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज हमें विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ ही देनी होती है, इसलिए इसकी एग्जांपल करेंट लाइबिलिटीज़ में है। नेक्स्ट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, द लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ और एन ईयर। इसका मतलब जिसे अभी आप रोक सकते हो 1 साल तक के लिए, उसे आप बोलेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। इसकी एग्जांपल है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इट मीन्स ऐसे लोन्स जो आप बैंक से लेते हैं जिनका पीरियड, पे बैक पीरियड होता है 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, वो क्या इसकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल है हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ अकाउंट रिसीवेबल और द डेटर, जो मैंने पहले छोड़ दिया था, अब इसका मतलब समझो। अकाउंट रिसीवेबल और डेटर क्या होते हैं, अ पर्सन हु ओज मनी टू द कंपनी बिकॉज ऑफ एन क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। इट मीन्स ऐसे लोग जिन्होंने हमारी कंपनी को पैसा देना है। क्यों देना है, क्योंकि हमने उन्हें सेल की थी बट क्रेडिट पे की थी, मतलब हमने उन्हें गुड्स दे दिए थे एंड उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम अभी तो पैसे नहीं दे सकते बट थोड़े टाइम तक आपको पैसे वापस कर देंगे। ऐसे लोग हमारे क्या बन जाते हैं, ऐसे लोग हमारे डेटर्स बन जाते हैं। इन द सेम वे अकाउंट्स रिसीवेबल और here account receivable, here just cut this word receivable, this is accounts payable. See, account receivables are basically the debtors and account payable are the creditors. Who are account payable? A person or a company whom we owed money to on account of any credit purchase of goods. It means ऐसे person, ऐसी company जिनको हमारी कंपनी ने पैसे वापस करने हैं। क्यों वापस करने हैं, क्योंकि हमने उन लोगों से कुछ क्रेडिट पे परचेज़ किया था, मतलब हमने उनसे रॉ मटेरियल परचेज़ किया था या कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया था क्रेडिट पे, उधार पे, हमने उन्हें पैसे वापस करने हैं। तो ऐसे लोग हमारे क्या बन जाएंगे, ऐसे लोग हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे। Now the next terminology is debit. Now what is the meaning of debit? Debit is basically an accounting entry that either increase your asset or expense account or decrease a liability. It is positioned to the left or of an accounting entry. डेबिट का सिंपली मतलब हमारे अकाउंट्स में होता है कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जहाँ पर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं और वाइस वर्सा, डेट इज़ लाइबिलिटीज़ आर डिक्रीजिंग। whenever your assets are increasing and your liabilities are decreasing, you will be debiting that entry and it is positioned to the left of an accounting entry. अभी के लिए सिर्फ इसका मतलब इतना ही समझना, whenever we will be कमिंग और जंपिंग टू द जर्नल एंट्रीज पार्ट, उस केस में ये दोबारा से टर्म याद दिलवाऊंगी और ये पार्ट दोबारा से हम कवर करेंगे। तब तक के लिए डेबिट का मतलब क्या हुआ, एन अकाउंटिंग एंट्री डेट इंक्रीज योर एसेट और डिक्रीज योर लाइबिलिटी इज डेबिट। इन द सेम वे क्रेडिट इज़ अ अपोजिट ऑफ डेबिट। इट मीन्स ऊपर हमने क्या पढ़ा, एसेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी कम होगी, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल उल्टा। A credit is an accounting entry that either increase a liability or decrease an asset. It means जहाँ पर हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं और लाइबिलिटी बढ़ रही है, उस केस में what we will be doing, we will be crediting that accounting transaction and it is positioned to the right side of an accounting entry. इसका मतलब क्या हुआ, अगेन जब हम फॉर्मेट्स बनाएंगे जर्नल एंट्रीज़ के, वहाँ पे डेबिट हमेशा लेफ़्ट पे आता है, क्रेडिट हमेशा राइट पे आता है। जब भी हम अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें दोबारा से समझाई जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का मतलब इतना ही करना है। डेबिट इज़ इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड क्रेडिट इज़ डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। Now the next part is inventory or stock. Now what is the meaning of inventory? Inventory is a quantity of goods owned by a business that is intended either for resale or can be used as a raw material in producing the final goods for resale.
इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा स्टॉक जो हमने गुड्स का अपने पास रखा हुआ है, किस लिए रखा है, या तो हम उसे सेल करेंगे, वापस रीसेल करेंगे, या फिर हम उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेंगे ताकि दोबारा से गुड्स प्रोड्यूस हों। क्यों गुड्स प्रोड्यूस हों? क्योंकि हमने उन्हें दोबारा से रीसेल करना है। इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, वो सारा स्टॉक जो हमने बेचने के लिए अपने पास रखा हुआ है वो हमारे कंपनी की इन्वेंट्री बन जाती है। Next part is the classification of inventory. Here I have given you the three classifications. First is inventory of raw material, then finished goods और work in progress. इसका मतलब क्या हुआ, या तो रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा हमारे पास, या फिर फिनिश गुड्स का मीन्स फाइनल गुड्स का, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स ना ही वो अभी रॉ मटेरियल हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें आपने कन्वर्जन कर दी है, और ना ही अभी वो फिनिश गुड्स हैं। मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स आर द गुड्स विच आर लाइंग इन बिटवीन द रॉ मटेरियल गुड्स एंड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमारे होते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सो दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट पार्ट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर. What is the meaning of proprietor? In accountancy language, proprietor is simply a person who owns a business. Means हमारी business का जो owner है वो हमारे business का proprietor है. Next is capital. Now what is the meaning of capital? Capital is basically the amount of money contributed by the owner of the business inside the business. It means एक नया इस्टेब्लिशमेंट, एक नया बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो भी पैसा ओनर लेके आ रहा है बिज़नेस में, वो हमारे बिज़नेस की क्या बन जाएगी, वो हमारे बिज़नेस की कैपिटल बन जाएगी. Next is expense. Now what is the meaning of expense? It is basically the money spent or the cost incurred by a business in their efforts to generate revenue. Simply expense का मतलब क्या है, वो सारे खर्चे जो हमारा बिजनेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने आगे रेवेन्यू जनरेट करना है. Now the question arises that what is the meaning of revenue? So next terminology is the income or revenue. Basically revenue is the other name of income. इनकम को ही हम रेवेन्यू बोलते हैं, बट अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बाद में वो ज़रूर कवर करेंगे. अभी के लिए इनकम को रेवेन्यू ही समझो. और रेवेन्यू क्या होता है, इट इज़ द इनकम इज़ द रेवेन्यू अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब जो भी हमें पैसा मिल रहा है अपने गुड्स को सेल करने के बाद, वो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू बन जाता है. Next part is drawings. Now what is the meaning of drawings? The amount of money withdrawn by the owner for his personal use. याद से, ध्यान से याद रखना, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ मनी, जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस से वापस निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए. मतलब क्या है, अगर हमारे ओनर ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हमारे बिजनेस का रेंट पे करने के लिए, उसे हम ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे. बट इन द सेम वे अगर ओनर ने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए अपने घर का रेंट पर को भरने के लिए, उस केस में जो अमाउंट ऑफ मनी द ओनर हैज़ विड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज़, that will become drawing. So here the personal use word is a very important word, and you should understand this aspect that if the owner is withdrawing for the personal use only, then you will be saying that it is a drawing. Until he is withdrawing the amount for the business use, you cannot classify the same thing as a drawings. So with this we have covered the 16 terminologies of accounting, and for today's lecture I think this much is sufficient for you all, because again the same thing, छोटे हो अभी के लिए इतना बहुत enough है. Now the next part is the 3 golden rules of accountancy along with its uses. बहुत ही interesting है, बहुत ही important है. अगर आज इसे अच्छे से समझ लोगे, I promise you won't be facing any kind of problem in understanding the other lectures of accountancy. So let us start with the 3 golden rules of accountancy. Here I have written the 3 rules. First is debit what comes in, credit what goes out. Second is debit is the receiver, credit is a giver. Third is debit all expenses, credit all gains. 3 रूल्स पढ़ के कुछ नहीं समझ आया. अब इसका कैसे समझोगे? सी,
बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज 3 रूल्स एंड देयर एग्जैक्ट यूसेज, किस तरह से यूज़ होगा, इसका क्या मतलब है, क्यों बता रहे हैं मैम ये, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. सो हेयर आई हैव गिवन द 3 types of accounts to you. The first is real account, second is personal, and the third one is nominal account. Now what is the meaning of real account? Real account is simply the assets. It means जहाँ पर भी हमारे पास कोई एसेट आएगा, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, कंप्यूटर है, कोई भी एसेट आ रहा है, वो एसेट हमारा कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, वो एसेट हमारा रियल अकाउंट ओपन करेगा. Next is personal account. Personal account simply means 2 types of person, either it is a artificial person or it is a natural person. What is the meaning of artificial person? Basically कोई भी कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लाइक कोई भी ABC लिमिटेड, किसी भी तरह रिलायंस लिमिटेड, जितनी भी कंपनीज होती हैं अकाउंटेंसी में, हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं. एंड नेचुरल पर्सनस आर बेसिकली द पर्सन हु टेक ब्रीथ, हु आर लिविंग पर्सनस लाइक राम, श्याम, गीतिका, सितिका, एनी काइंड ऑफ पर्सन you will be classifying that particular living person into the personal account. Third is a nominal account. Nominal account means all the expenses and gains covered in this नॉमिनल अकाउंट. इट मीन्स जब भी हम किसी भी तरह के एक्सपेंस की बात करेंगे, रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, कोई इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक्सपेंस है, एंड ऑन द अदर हैंड किसी भी तरह की गेन की बात करेंगे, मतलब कोई भी इनकम, हमने कोई कुछ सेल किए हैं, किसी भी तरह की इनकम है, उस केस में हम कौन से अकाउंट ओपन करेंगे, हम नॉमिनल अकाउंट ओपन करेंगे. सो सी, फॉर द रियल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ऑलवेज अप्लाई द रूल 1. इसका मतलब क्या है, जब भी कोई भी एसेट की बात आ रही है, फर्नीचर की बात आ रही है, उस केस में हम रूल अप्लाई करेंगे 1. एंड फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एसेट हमारी कंपनी में आ रहा है, हम उसे डेबिट करेंगे, एंड जब भी कोई एसेट हमारी कंपनी सेल कर रही है, हम उसे हमेशा करेंगे क्रेडिट. That is the reason in front of this rule 1 I have written real. It means जहाँ पर भी किसी भी एसेट की बात हो रही है, उस केस में हम रियल अकाउंट समझेंगे उसे, एंड हमेशा रूल अप्लाई करेंगे 1, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. इन द सेम वे फॉर द सेकेंड काइंड ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट्स. किसी भी पर्सन की बात हो रही है, दैट इज़ आइदर अ आर्टिफिशियल पर्सन और अ नेचुरल पर्सन, वी विल बी अप्लाइंग द रूल 2. अब रूल 2 क्या है, debit is the receiver and credit is the giver. It means the person who is receiving any kind of product, any kind of good, you will be debiting that person, and on the other hand the person who is a giver means जो तुम्हें पैसे दे रहा है, जो तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे. and thus in front of the second rule I have written the personal account. and third one is a nominal account. nominal account means अगर कोई भी एक्सपेंस होगा हम उसे डेबिट करेंगे, कोई भी इनकम होगी हम उसे हमेशा क्रेडिट करेंगे. दैट इज़ द रीज़न आई हैव रिटन द नॉमिनल इन द थर्ड पार्ट, दैट इज़ अ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स. सो विद दिस वी हैव कवर्ड द यूसेज ऑफ दीज रूल्स एज वेल. एंड मुझे अच्छे से पता है बिगिनर्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, and I am advising them to do one thing. Just write these 3 rules on the page of paper. किसी भी पेपर पे लिख लो ये 3 रूल्स. जब तक हम जर्नल एंट्रीज शुरू नहीं करते, तुम लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये 3 रूल्स को उस पर लिखो. जब भी टाइम मिलता है इन 3 रूल्स को बार बार हमने क्या करना है, बार बार हमने इन 3 रूल्स को रिवाइज़ करना है, और उसके साथ ही क्या करना है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स याद करने हैं. एंड इतना सा याद रखना है, फर्स्ट रूल कब अप्लाई होता है, रियल अकाउंट में, सेकेंड रूल पर्सनल में, एंड थर्ड में nominal में. And I am promising you whenever I am starting the lecture on journal entries, I am again giving you the revision of these 3 rules and their usage. उसके बाद जब मैं जर्नल एंट्रीज करवाऊँगी, दिस इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड दैट यू वोंट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ़ यू हैव लर्नड दीज 3 रूल्स बाय हार्ट एंड प्लस अलॉन्ग विद देयर यूसेज. क्योंकि कभी भी कहीं भी पढ़ लेना, रूल्स हर जगह मिलेंगे, इनके यूसेज कहीं भी इस तरह से समझाए नहीं जाएंगे.
जब भी इसके यूसेज को अच्छे से समझ लोगे कि फर्स्ट रूल रियल अकाउंट में लगता है, सेकंड रूल पर्सनल में, थर्ड रूल नॉमिनल में, इसी 3 रूल्स और इसकी यूसेज को रिवाइज करके हम करेंगे जर्नल एंट्रीज शुरू. एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू वोंट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द जर्नल एंट्रीज पार्ट. With this, we have covered our first lecture of accountancy. Thank you so much, and do not forget to like, subscribe and share Dream Achievers by Gitika Arora. Have a nice day ahead. And yeah, if you are having any problem in the lecture 1, you can comment the same in the comment section. And again, I am giving you the opportunity, if you want to discuss any another topic of commerce and management, do comment the same in the comment section, and I am promising you that I will be bringing every topic which you will be commenting in the comment section. With this, thank you so much.